नमस्कार, हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आनंदवर्धन के साथ आनंद जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे को पता है आपने रात में एक प्रोग्राम लाइव किया था, शायद 12-1 बज गए होंगे आपको सोते हुए और फिर सुबह से भी आप लगे हुए हैं। तो आज दिन बहुत बिज़ी होने वाला है आपका और बात सिर्फ़ एक ही चल रही है सब जगह, ट्रम्प की जो स्पीच हुई थी कल। उसी पर हम आगे बात करेंगे क्योंकि वो स्पीच अगर किसी ने नहीं सुनी है तो वो सुन लें। मैंने 1, 2, ढाई मिनट का एक छोटा-सा कैप्सूल बनाया है उन पार्ट्स का जो हमारे डिस्कशन के लिए आज रेलेवेंट होने वाला है। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ढाई मिनट का एक छोटा-सा वीडियो दिखा दें, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn from weeks ago without even a token of defense. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. तो ये ट्रम्प साहब की इनॉग्रल स्पीच है और इसका लेवल आप सुन ही रहे हैं। कहीं पे वो ये एक तो ये भूल गए कि वो प्रेसिडेंट बन गए, वो एक ऑपोजिशन लीडर जो एक टाउन हॉल मीटिंग कहीं कर रहा है, वो वैसे एड्रेस कर रहे हैं। 2 चीज़ें इसमें नोटिसेबल थी, एक तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा जितने भी पुराने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पे बिल क्लिंटन बैठे हैं, जो बाइडेन बैठे हुए हैं, ओबामा बैठे हुए हैं, बुश बैठे हुए हैं। इन सब के पीरियड को उन्होंने कहा कि ये सब बेकार लोग हैं, यहाँ कुछ नहीं हुआ, अब मैं सब ठीक करने आ गया हूँ। वहाँ पे एक चीज़ जो भी ये वीडियो देखे, जब ये ट्रम्प बोल रहे हैं, तो जो रिएक्शन है बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, जो बाइडेन, कमला हैरिस का, वो देखने लायक है जब ट्रम्प ने ये पहली लाइन बोली है। मैं जो भी देखे, मैं उन्हें गुज़ारिश करूँगा कि वो एक बार ध्यान से देख लें। कहीं पे आनंद मेरे को ये लग रहा है कि हमारे मोदी साहब और ट्रम्प की जो स्पीच हुई है, उनमें बहुत सी सिमिलैरिटी है।
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अच्छे दिन आएंगे। बेस्ट पीरियड ऑफ अमेरिका है जस्ट स्टार्टेड, अमृत काल। आई वॉज सेव्ड बाई गॉड, मोदी जी को पंजाब में बचाया था। प्रीवियस गवर्नमेंट वर करप्ट, पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और आजादी हमें 2014 में मिली, ये सब लोग जानते हैं। तो आनंद, पहले सबसे पहले आपकी टिप्पणी एंड रन थ्रू ऑफ द स्पीच ऑफ ट्रम्प, एंड हाउ डू यू फील? आनंद। थैंक यू अजय। और मतलब ये देश के लिए, देश नहीं दुनिया का एक बड़ा इवेंट है। मैं दो तीन चीजें जो आपने कहा उसमें और जोड़ दूं। उन्होंने अच्छे दिन, नॉन बायोलॉजिकल सब तो किया, जो एक दो चीजें उन्होंने और जोड़ी। उन्होंने यहाँ की तरह से चिरपरिचित अंदाज में राष्ट्रवाद की बात उठाई है, नेशनलिज्म, अमेरिका फर्स्ट। तो यहाँ पे भी हम लोग राष्ट्र प्रेम हम। दूसरा, उन्होंने एक और काम किया जो मुझे ऐसा लगा, उन्होंने विपक्ष को, जैसे यहाँ पे कहा जाता है निकम्मा, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, ये सब उन्होंने उनके वहां बिठा के कह दिया। और एक और चीज जो मैं ये ऐड कर रहा हूँ, जो आपने चीजें कही उसी में ऐड करता जा रहा हूँ। और उन्होंने विक्टिम कार्ड भी खेला कि मेरी तो हत्या कराने में ये सब लोग थे, मुझे तो भर भर के गाली देते हैं, रोज गाली खाता हूं। तो ये सारी चीजें आपको रिपीटेशन लग रहा था। बस एक ये चीज थी कि चूंकि अमेरिकन एक दूसरे तरह से, और इन भाई साहब की ट्रेनिंग अब बिजनेसमैन के रूप में हुई, मतलब बिजनेसमैन है ही, ट्रेनिंग क्या बिजनेसमैन है, तो ये ज्यादा उनके, और स्ट्रांग, अमेरिकन प्रेसिडेंट स्ट्रांग है तो उनका एक बड़ा रूप दिखाई देते हैं। ये उनके फोटोकॉपी नहीं है, ये उनसे इंस्पायर होंगे ये सब बदमाशी करने के लिए। दो तीन चीजें हैं कि अब करीब करीब वो पूरा जो कहते हैं ना एक सर्किल घूम रहा है, और वो कंप्लीट हो रहा है कि हम लोग बहुत कहते थे कि पैसे का बहुत महत्व है, पैसा है और पैसा कंट्रोल करता है, और फलाना एमपी साहब को इतना पैसा मिल गया और उनके इलेक्शन में ये फंडिंग होती है। अब फंडिंग करने के लिए अब खुद बिजनेसमैन जो जो पैसे पूंजीवाद, वो खुद अब चलाएंगे सरकार। दे आर देमसेल्व्स लीडर। एलन मस्क फ्रंट रो में बैठे हैं, जुकरबर्ग फ्रंट रो में बैठे हैं। ये, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पहले ही था ना कि नेताजी हैं, नेताजी किसी से पैसा ले लेते हैं इलेक्शन। नहीं नहीं नहीं, मेरा पैसा मेरा, वो मैं ही, अब मैं पीछे क्यों रहूंगा। एलन मस्क की थोड़ा वो एक मुश्किल ये है कि शायद तो नेचुरल अमेरिकन या कुछ होना जरूरी है, वहां की क्वालिफिकेशन है, अदरवाइज आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। एक और चीज जो बहुत अननोटिस गई है, जो मैं इसलिए उस पे बोलना चाह रहा हूं। देखिए, आप जैसे भी देश हो, आप बहुत छोटे देश भी हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड जैसा देश है जिसमें आज दुनिया के लोग जाके वहां पे अपना पैसा वहां रख के सुरक्षित मानते हैं। मैं, अच्छा है बुरा है, मैं उस पैसे पे नहीं जा रहा हूं, वो चोरी का पैसा है नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि सुरक्षित देश है। हमारा देश इतना बड़ा है, और हमें अगर कुछ ट्रीटमेंट इस तरह के मिले थे, तो उसको मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ग्रेसफुली, इतनी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए थी। क्या जल्दी थी? वाई वी वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट वन टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम? वाई? कल अगर आपने, मालूम नहीं वो आपने वीडियो देखा कि नहीं, असल में अभी मुश्किल क्या है अजय, की बहुत से वीडियो आ रहे हैं, वो लगाने से कॉपीराइट की समस्या आती है। एक वीडियो आया है जो अगर आप ढूंढेंगे, और मैं उसका लिंक कोशिश करूंगा कि लिंक दे दिया जाए, ट्विटर या कहीं पे है, मैंने खुद देखा है। एस जयशंकर साहब जबरदस्ती जाके पहली रो में बैठ गए हैं, और उनको, उनकी वो जो लेडी आ रही है वो कह रही है उठी उठी, चले चले पीछे, वो उठे नहीं रहे हैं, वो आगे आगे खड़े हुए हैं। उससे वो कह के फिर वो, मतलब उसका पूरा जो आप वो देख रहे हैं, उसको पहले जो भी उनका प्रोटोकॉल है, एक लेडी ने एक सीनियर अफसर से कहा है, फिर इसको भेजा गया है, फिर ये भाई साहब हटे ही नहीं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग तो जहां की उस ट्रेनिंग में है कि अब आके एक बार बैठ जाओ तो हटाओगे कैसे। और ये वो सारे लोग हैं, अगर हम और आप भी, हमारे और आपके बीच भी इस तरह के थिक स्किन लोग रोज मिलते हैं, जो किसी भी शो में किसी भी जगह लेट आएंगे, और फिर फ्रंट रो के आगे आमने सामने चल के ऐसे देखेंगे कि कोई उठे। और मतलब अच्छा, अब कभी एज की लेके, कभी उनकी सीनियरिटी लेके कोई ना कोई बेचारा उठ ही जाता है, लेकिन नहीं, मैं ये भी चीज देख रहा हूँ कि अब कई लोग उठते भी नहीं। अब वो 70 साल के हो गए तो हो गए, वो 20 साल का लड़का भी बैठा रहता है कि लेट आया। लेकिन इस तरह की एक मेंटालिटी है जो वहां पे भी देखने को साफ साफ मिल रही थी। जो ज्यादा खतरे वाली चीज, जो मुझे मुझे जो लगा है, जो ज्यादा खतरा है, क्योंकि उन्होंने अब क्या क्या कर रहे हैं, उन्होंने करना शुरू कर दिया, ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड। और
ये पहले भी था, हम लोग ने 2-3 महीने पहले जब इस पे बात की थी तो सबसे बड़ा खतरा ये लग रहा था कि इस बार ट्रंप प्रिपेयर्ड है, ही हैज कम विथ फुल प्रिपरेशन। पिछली बार जैसा कहा जाता था कि ट्रंप की ऊल जलूल हरकतों को उनका जो एग्जीक्यूटिव वो काफी हद तक उसको बफर की तरह उसको एब्जॉर्व कर लेता था और आगे कुछ इस तरह की बेवकूफियां नहीं जाने देता। इस बार वो नहीं है। इस बार ट्रंप जी ने एक एक जगह अपने मोहरे बिठाए हैं। उनको जो यहाँ के लोग बहुत खुश हो रहे थे कि रामास्वामी तो अपना आदमी है, रामास्वामी को उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में उनको बाहर कर दिया कि तुम चलो अच्छा बाहर बैठो, तुम्हें हम ओहायो का कौन सी स्टेट का तुम्हें कुछ बना देंगे, जो अपने यहाँ गवर्नर टाइप लोग होते हैं, गवर्नर साहब रहेंगे अपना। अब गवर्नर साहब की क्या क्या वो है, वहां जाके अपना खुश रहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से डिक्लेरेशन है, लेकिन 2 चीजें ऐसी हुई हैं जो जिसपे दुनिया में फर्क पड़ेगा। उसमें से एक वो जो अपने को वो WHO से विड्रॉ किए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किए हैं, और दूसरा जो पेरिस डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट है उससे विड्रॉ किए हैं। और तर्क ये दिए हैं कि हम अमेरिका को फिर से एक बार हेल्थ और एनवायरनमेंट में वो क्या क्या बनाना चाहते हैं। ये बदमाशी वाली बात है। दुनिया में सबको पता है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देशों में से आप हैं। आप अपने वेस्ट को दूसरी जगह जाके डंप करते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हो, और उसके बाद अगर आपको एक वर्ल्ड बॉडीज में अगर आप नहीं बंधे रहेंगे तो आप तो ऐसे रहेंगे कि आपके पास ताकत है, आपके पास ये सारा कुछ है, एंड यू आर नॉट चेन्ड बाय एनीथिंग। आप तो अपना खुले हैं, आप जहां बनाएगा वहां आप जो क्या करेंगे और दुनिया इसको कैसे देखेगी। मतलब दुनिया के लिए खराब समय शुरू हो गया इसको, और इतना ही कहा जा सकता है। अजय। करेक्ट आनंद, मैं ट्रम्प के डे 1 के कुछ डिक्लेरेशंस थे जो इन्होंने बोले थे। मैं आपको एक समरी देता हूँ, और कुछ उन्होंने कल रात को साइन भी कर दिया, और बड़े स्टाइल से साइन वाइन करके उन्होंने वो पेन क्राउड में फेंक दिया और क्राउड की तरफ से तालियां बज गई। आई थिंक ये एक नया वो है, शायद हमारे यहाँ भी ये सीखना चाहिए। अगली बार जीतो तो ये स्टेज पे चढ़ के कुछ साइन करके पेन फेंकना, ये एक बहुत नई चीज हुई है। ये 9 चीजें मैंने निकाली थी। अब इसमें जो व्हाइट कलर में जो मैंने लिखा है इमिग्रेशन के बारे में, बर्थ राइट, सिटीजनशिप, ट्रेड टैरिफ्स, और मेरे हिसाब से जो ईवीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट जो विड्रॉ कर रहे हैं, इन चीजों का सीधे सीधे भारत पर असर पड़ेगा। बाकी इन्होंने वो अपने जितने भी दंगाई थे उनको पार्डन कर ही दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर से ये हट जाएंगे, नाटो को सपोर्ट नहीं करेंगे इत्यादि। तो ये चीजें हमें ट्रेड टैरिफ्स का, आज आपने ये अनाउंसमेंट सुना है, और आज हमारे स्टॉक मार्केट 800 पॉइंट नीचे गिर गया है, क्योंकि सबको ये डर है कि अब ये ट्रम्प हम पर वो लगा देंगे, कुछ ना कुछ इसमें टैक्सेस बढ़ा देंगे। हमारा, जस्ट टू टेल यू, हमारा जो ट्रेड बैलेंस अगर पॉजिटिव है वो केवल यूएस से ही है। बाकी जगह से बहुत छोटा छोटा है, मेजर सिर्फ यूएस से है जहां पे हम पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें आप अब कैसे देख रहे हैं? भारत पर इन चीजों का क्या क्या आपके हिसाब से हम लोगों के लिए अब खतरा बढ़ने जा रहा है? आनंद। मतलब सब इसमें से जितने आपने पॉइंट कहे हैं वो अपने में ही एक पूरा विषय है, और उस पे ही एक लंबी चर्चा भी हो सकती है, लेकिन मैं ब्रीफली जैसे मैं करूंगा। एक तो आपने जैसा बताया कि भारत का ट्रेड सरप्लस मेरे ख्याल में 36 या 38 बिलियन, 36 और 38 बिलियन यूएस डॉलर पिछले साल का था, 23-24 का। और $1 बिलियन में मैं फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, इट्स अबाउट 8.8 करोड़। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। जो हम लोग बात कर रहे हैं, करीब 2 लाख करोड़ का हमारा ट्रेड सरप्लस था। ये बात समझना इसलिए जरूरी है, और ये बात जानना भी इसलिए जरूरी है कि अमेरिका से हम बहुत कंफर्टेबल थे ट्रेड में। अब अगर ये टैरिफ आता है, क्या आएगा, और वो एक कॉम्प्लेक्स करेंगे, क्योंकि शायद हमने भी जब जीएसटी आया था तो हमने भी कुछ चीजें अजीब सी की थी। जीएसटी, मेरी समझ ये थी, मैं तो मैं नॉन इकोनॉमिक्स वाला आदमी हूँ, लेकिन एक जनरल समझ ये थी कि ये जीएसटी इसलिए आया है कि इससे टैक्स आसान हो जाएंगे, एक टैक्स होगा, सब पे वही लगेगा। इस जीएसटी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि समोसा हाथ में लेके खाओगे कि प्लेट में लेके खाओगे कि केचप डाल के खाओगे, वो 3 उसके रेट हो गए हैं।
तो वो कुछ अजीब-अजीब, मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड करने में हम लोग, ये दुनिया की शायद अकेला देश है जैसा मुझे बताया गया, जहाँ पे टैक्स, इनकम टैक्स आप जो चाहिए वो भर दीजिए। एक ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, एक ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। सेविंग का एक ये भी ऑप्शन है, एक ये भी ऑप्शन है। मतलब कुछ-कुछ अजीब तरह का ये देश है भाई। खैर, मेरे हिसाब से एक चीज़ का जो मुझे लगता है कि वो उसका कुछ एजेंडा है जो अभी हम लोग शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो ईवी मैंडेट को इन्होंने विथड्रॉ किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, वो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये सोच है, क्योंकि उसमें एलन मस्क बहुत बुरी तरह से करेक्ट, टेस्ला, करेक्ट। मतलब एक तरह से लीडर हैं उस इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले के। मुझे बहुत रिलेशनशिप, अभी हो सकता है 2-4 दिन में वो चीजें और राइट। क्लियर हो जाएं। और दूसरी तरफ ड्रिलिंग और पाइपलाइन को ये बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मतलब मेरे 2-4 दोस्त हैं जो ज्यादा समझते हैं इस चीजों को, उनका तो कहना था कि बस तुम लोग, मैंने एक कोई गाड़ी खरीदी थी जो पेट्रोल से चलती है, वो कहता है बिल्कुल पागल आदमी हो, 2 साल में कूड़ा हो जाएगी, ये तो लोहे के भाई, ये तो तौल के बिकेगी, वो ये समझा रहे थे मुझे। तो अब मेरी गाड़ी कूड़ा होगी कि उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कूड़ा होगी, ये देखने वाली समय आएगा। क्योंकि राइट। क्योंकि चक्कर क्या है कि अगर अमेरिका वो कर रहा है तो हम तो अमेरिका के पीछे पीछे चलेंगे ना, उस राह पे चलेंगे। दूसरा ये है कि एलन मस्क का जो एक, क्योंकि एलन मस्क का जो प्रोजेक्ट है, जब दूसरे ग्रह में ले जाना है और उसमें उनकी व्हीकल अपना उसका लॉन्च तैयार कर रहे थे, उस पे बहुत रिलैक्सेशन दिया है। नंबर 3, भारत रशिया से अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध क्रूड ऑयल खरीद रहा है बहुत सस्ते दामों पे, और उस टोटल क्रूड ऑयल का 40% रिलायंस जी ने साइन कर लिया अगले 10 या 15 साल के लिए। मतलब भारत में हमको और आपको सस्ता पेट्रोल नहीं मिल रहा है, वो जो जितना पैसा है वो रिलायंस मुकेश अंबानी जी की जेब में जा रहा है। अब जेब में जा रहा है तो पता है ही। एक दो चीजें मैं इसलिए बता दूं कि वो अजय, हम और तुम वो जान रहे हैं, लखनऊ से एक और चैनल चलता है जो अडानी जी के कुछ गुणगान करता रहता था, और उसको आप भी जानते हैं, मैं क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं, क्या नाम बार बार लेना। कल उस चैनल ने एक अजीब सी बात ये हुई, अच्छा वो किसी के कहने पे ही ये सब करते हैं, मानी हुई बात है। कल उन्होंने मुकेश अंबानी को खूब गाली दी है कि वो तो अडानी जी की उसके हैं और अडानी जी का अगेंस्ट है, न्यूज 18 है, और क्या न्यूज 18 है, और ये बिल्कुल ये है, और देश को बेच खाएंगे, और मोदी जी का अगेंस्ट। वो अब क्या हो गया है कि अडानी जी अपने को प्लेस कर रहे हैं कि अडानी जी मोदी जी के बिना, अडानी जी एक दूसरे के पूरक हैं, और जो कोई भी इनके अगेंस्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिल पे बात लग गई है जो मुकेश अंबानी वहां अमेरिका गए हैं। इस पे भी बड़ी डिबेट हो रही है अजय, इस पे भी डिबेट हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बिना पूछे नहीं गए होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कॉन्स्पिरेसी है, ये दोनों लोग मिलके उनको भेजे हैं। लेकिन मेरी जितनी समझ है कि इन लोग जितने छोटे मन के लोग हैं, ये ये बांट के खाने के लोग नहीं है, इनको पूरा चाहिए। अगर मुझे एयरपोर्ट चाहिए तो मैं ही सिर्फ एयरपोर्ट चलाऊंगा और कोई नहीं चलाएगा। ये अंबानी जी ने में भी ये आदत है। मुकेश अंबानी भी, अगर मैं उसमें घुसा हूँ, इसमें स्पेक्ट्रम में और इसमें, तो केवल मेरे ही फोन चलने चाहिए, बाकी सबको मैं वो कर दूंगा। तो वो दोनों की वो मेंटालिटी है। लेकिन जरा ईवी मैंडेट विड्रॉल जो हुआ है उसका जरा समझना की बात होगी, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो उसकी बैटरीज हैं उसकी सबसे बड़ी सोर्सिंग चाइना से होती है, तो वो भी, अब उसका क्या लिंक है और उसका क्या है, वो शायद 2-4 दिन में जब स्पष्ट होगा तो फिर इस पे हम लोग एक चर्चा और करेंगे। लेकिन जितने आपने वो लिखे हैं उसमें उसमें सारे कुछ ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि भारत उसमें कुछ खुश हो कि देखो चलो चलो ये इससे हमारा कितना फायदा होगा। हमारे लिए ऑन गार्ड्स रहना है, और हम लोग इसी में खुश हैं कि हम लोग ये प्ले कर रहे हैं कि ट्रंप आ रहे हैं यहाँ, आ रहे हैं, अरे आ नहीं रहे हैं बिकॉज 2025 में इंडिया को होस्ट करना है क्वाड, तो उस क्वाड की होस्टिंग नेशन के रूप में वो भी आ जाएंगे। वो उन्हीं का बनाया हुआ है, अमेरिका का बनाया हुआ क्वाड है, वो तो उसका बेबी है भाई, वो आपका बेबी नहीं है, इट इज हिज बेबी। उसने इस बार कहा कि अजय चलो भाई इस बार तुम खाना आना खिलाओगे, तो अजय जी अब हैदराबाद में, और आनंद चलो तुम इस बार लखनऊ में तुम प्लेटलेट साफ करना, तुम खाना है। तो उसने आपको हुक्म दिया है, आप यहाँ यू आर होस्टिंग है, वो आपसे मिलने नहीं आ रहा, वो क्वाड को, क्योंकि इट इज हिज बेबी, तो वो क्वाड को सक्सेसफुल। और इसी के लिए, इसी के उसमें उन्होंने जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 3 जगह के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया था। लोग यहाँ पे कह रहे हैं नहीं नहीं, एज एन स्पेशल इन्वॉय नहीं,
वो क्वेट की तैयारी के लिए बुलाया गया है कि चलो अब सब लोग अपना अपना तैयारी करो, चलो उसमें चलो पढ़ो पढ़ो। तो सबको उन्होंने हाँक के कह दिया होगा कि चलो कमरे में बैठो और अपने नोट्स वोट्स बना के दे के जाना, दिखा देना। वो मस्क जी क्या बड़े बड़े टीचर जो मैथ्स के टीचर हैं उनको दिखा के जाना, अपने घर मत भाग जाना बिना। तो राइट। मत। हाँ, तो अब देखिएगा नए नए इक्वेशंस बनेंगे, लेट्स सी। आनंद, एक चीज और थी, जनरली जो बड़ा कॉमन है हमारे देश में और अब यूएस में, रिलीजन और नेशनलिज्म, ये हमेशा जोड़ के अब दिया जा रहा है पब्लिक को, और ये पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है। कल भी जब ट्रम्प जी वहां पे ले रहे थे ओथ, तो शायद पहले एक क्रिश्चियन प्रीस्ट आया, फिर एक ज्यू रैबी आया। इस बार उन्होंने हमारे हिंदू प्रीस्ट को नहीं बुलाया है। और काफी हमारे एनआरआई दोस्त वगैरह खुश होते थे कि देखो व्हाइट हाउस में दिवाली मन रही है, दिए जलाए जा रहे हैं, छुट्टी डिक्लेयर हो गई है। तो कहीं पे ये हमारे लिए धक्का नहीं है कि ट्रम्प ने ज्यादा आपकी भाव नहीं दिया है हिंदुस्तान को, पॉलिसीज भी हमारे खिलाफ हो गई, मोदी जी को नहीं बुलाया, कम से कम हिंदू प्रीस्ट ही बुला लेते, वो भी नहीं बुलाया। आनंद जी। मैं अजय, हिंदू प्रीस्ट की बात नहीं है, वो मैं स्पेसिफिक बता दूं, उनका प्रोग्राम वाला जो प्रोग्राम, जो ऑफिशियल प्रोग्राम आया है, उन्होंने एक जू को बुलाया, उनका जो जो रिलीजियस लीडर होता है। उन्होंने कैथोलिक को बुलाया, उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट को बुलाया, और उन्होंने मुस्लिम मौलवी को भी बुलाया। उन्होंने मुस्लिम मौलवी को भी बुलाया है। ये ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने ने हिंदू, तो क्या हिंदू धर्म को, उनको लगा कि जो हिंदू धर्म जो प्रैक्टिस करते हैं हिंदुत्व वाले, अगर ये है तो भैया भगवान ही बचाए इससे। क्योंकि अगर कोई हिंदुत्व, जो हिंदुत्व आजकल जो उसके झंडा लेके चल रहे हैं, उस हिंदुत्व को अगर कोई देख लेगा तो जय श्री राम, आप आएंगे भाई, आप कुछ कहते हैं ना धर्म, या हम आपको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, जय श्री राम तलवार निकाल के, तो ये होगा कि भैया ये कौन सा है। तो उन्होंने 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 हिंदू धर्म ही नहीं, धर्म जो जिनका ओरिजिन भारत से था उसमें से किसी को नहीं किया है। दुनिया में सिख, उनके यहाँ सिख बहुत बड़ी आबादी में है, मतलब आबादी डिसीजन मेकिंग में है। उन्होंने किसी सिख को नहीं। अदरवाइज उनके यहाँ एक, मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ, दैट लेडी हु इज नाउ अ पार्ट ऑफ हर लीगल टीम, मतलब जो ऑफिशियली है, वो हिंदुस्तानी लेडी हैं, सिख को मानती हैं, और उनके ऊपर उन्होंने पार्टी की भी नेता हैं, और उन्होंने वहां पे वाणी यानी गुरुवाणी का पाठ हट किया था, वो उस तरह की है। उन्होंने बौद्ध का किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने मतलब मैं सिर्फ इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि वहां गुजराती भी, उनके तो गुजराती बहुत हैं जो जैन धर्म को बहुत मानने वाले लोग हैं। तो वो उन्होंने हिंदुस्तान में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उनको किनारे कर दिया है। अब उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं कि राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तो बताया जाएगा ना कि वो मोदी जी को इसलिए नहीं बुलाया कि उसने कहा कि क्या ये राहुल गांधी को तुम रखे हो, उसको जेल में बंद करो तब तुम्हें बुलाएंगे। कुछ इस तरह की लॉजिक अभी हमारे यहाँ डेवलप होगी। अजय आनंद, लास्ट में इन्होंने आज कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, मैं सिर्फ एक दो पर आपसे बात करना चाहूंगा। तो ये लिस्ट है, कल रात से ये काफी बिजी रहे हैं। हिस्टोरिक नेम्स इन्होंने रिस्टोर किए हैं, हमारे यहाँ भी ये होता रहा है, सारे नाम बदल दिए, राजपथ, औरंगजेब रोड, शायद ये इन्होंने हमसे ही सीखा है। लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिक यहाँ बात करूंगा, जो ये डीप स्टेट की और जो सरकारी पोजीशंस को ये रिडिफाइन कर रहे हैं या कंट्रोल में ले रहे हैं, जो कुछ एक्चुअली डीप स्टेट के बारे में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बोलिए, और ये ट्रम्प किस तरफ जा रहे हैं कि पूरी कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। आनंद देखिए, ऐसा है कि अजय, वो लोगों को कंफ्यूज भी, जैसे हमारे यहाँ कंफ्यूज नहीं किया जाता है, उन्होंने बड़े टॉम टॉम करके उन्होंने एक को बोला है कि हम जो सेंसरशिप थी और जो प्रीवियस गवर्नमेंट की बाइडेन ने जो किया था, हम उसको विड्रॉ करके प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। प्रेस फ्रीडम के बारे में, इनके बारे में बहुत कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो लोगों को ही हैज थ्रोन आउट जर्नलिस्ट इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो मतलब वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खास करके एक ये होता है ना कि डीप स्टेट की बात वही करता है जो इसको यूज करता है। तो अगर ट्रंप जी आज पूरी तरह से उस डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जब एलॉन मस्क ने कमला हैरिस का एक उस तरह का कार्टून लगाया था, तो उसको क्यों नहीं रुकवाया था? उनके ऊपर
क्यों नहीं कोई कार्रवाई की थी? आप किस डीप स्टेट की बात कर रहे हैं? क्योंकि डीप स्टेट का जो सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है, जो इसको मैनिपुलेट कर सकता है, वो आपके बगल में बैठा हुआ है, और वो आपकी पॉलिसीज को जो चेंज होंगी उसको करने के लिए का कर्ता धर्ता बन रहा है। तो ये डीप स्टेट वी ऑल नो। एक चीज और उन्होंने किया है डीप स्टेट से रिलेटेड, जरा समझ लीजिएगा। अब इसमें है कि नहीं मैं देख नहीं पाया हूं। वो डेथ सेंटेंस को वापस ले आए हैं, जो अमेरिका में बाइडेन के रिजीम में ऐसा बताया जाता है कि उसमें कोई मतलब पेनल एक्शन में मृत्यु दंड नहीं मिला था, वो उसको वापस ले आए हैं। और जैसे हमारे यहाँ भी तो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भी मृत्यु दंड दे दो, इसमें भी दे दो। अगर कोई अडानी जी का नाम ले ले तो उसमें भी कोशिश तो यही कि उसमें भी मृत्यु दंड दे दो, कुछ इस तरह का। फिर से ट्रम्प मृत्यु दंड को लाना मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिव नहीं, एक रिग्रेसिव सोसाइटी की बात है, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्राइम बहुत बड़ा हो सकता है, जीवन भर उसको जेल में रखो, लेकिन जो चीज आप दे नहीं सकते हो, वो नेचुरल लॉ ये कहता है कि वो आप लेने का भी आपको अधिकार नहीं है। बीट और दुनिया में जान उसी में आती है। अगर आप जान दे नहीं सकते हो तो जान लेने का भी आपको अधिकार नहीं है। बिल्कुल, उसने क्राइम किया है, उसको सारे उसके ऊपर पेनाल्टीज लगाओ, जेल में रखो, लेकिन जान लेने के अगेंस्ट वाली लॉबी का मैं भी अजय। तो हमने आनंद लास्ट 10 साल मोदी जी के देख लिए हैं, जो इसी टाइप की मेंटालिटी थी और इसी टाइप के जो थॉट प्रोसेस था वो बहुत सिमिलर से दिख रहे हैं। हाउ डू यू सी अमेरिका नाउ? क्या 4 साल बाद अमेरिकन रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया? और एक बात ये अच्छी है कि ट्रंप अब दोबारा नहीं आ सकते, ये उनका लास्ट टर्म है, तो अब वहां से तो आगे बढ़ेंगे ही। तो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स फॉर अमेरिका? अजय, वो वही है कि इनइक्वालिटी, जो जितनी असमानता हमारे देश में बढ़ रही है, तो यहाँ पे अगर हिंदुस्तान के पहले 100 आदमियों से पूछा जाएगा तो वो बहुत खुश हैं। आसानी से लोन मिल रहा है, लोन ना भी चुकाओ तो वेवर दे दिया जा रहा है, फ्रंट रो में बिठाया जा रहा है। लेकिन क्या यही है? क्या ये सच है? और मेरा अपना मानना है कि 4 साल बाद वहां का जो अंडर प्रिविलेज है, वहां का जो ब्लैक है, या जो अंडर प्रिविलेज है, जो वहां का वंचित वर्ग है, उसके दिन और खराब होने वाले हैं। और हो सकता है एलन मस्क की संपत्ति 4 गुना बढ़ जाए, जुकरबर्ग की संपत्ति 8 गुना बढ़ जाए, उन लोगों का काफी कुछ फायदा हो। लेकिन जो 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 वंचित वर्ग है, उसमें आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि हम लोगों के भी कल कुछ दोस्त इस पे बहस कर रहे थे, आप भी थे उसमें। देखिए, ऐसा है कि किसी भी देश या किसी भी सोसाइटी में सबसे प्रोटेक्टेड वो रहता है बिजनेस, जिसकी एक नौकरी हो, जिसमें पेंशन हो। करेक्ट। अमेरिका में भी सारे लोगों की नौकरी और सारे लोगों की पेंशन नहीं है। तो वो लोग, और ये आज ही मैंने कहीं, अभी मैं सुबह ही बात कर रहा था, हरदम आपको ज्ञान वो देगा जिसके पास है। पैसे को अच्छे से रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, पैसे को अच्छे से, जब पैसा होगा तो अच्छे से रखेंगे ना। तो अभी ये क्या ज्ञान दे रहे हो? सफल होने के लिए सुबह उठना चाहिए। अरे भाई, सफल ही आदमी की लोग स्टोरी सुनते हैं। आपने किसी को सुना है कि वो फलाना हार गए थे तो इसलिए उनकी स्टोरी सुनने लगे? तो मेरा सब कहना यह है कि ये अमेरिका के लिए इट इज गोइंग टू बी टफ इफ अमेरिका इन टोटलिटी हम देख रहे हैं। अमेरिका, इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रम्प, इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एलन मस्क, इट इज, तो अमेरिका जरूर प्रगति करेगा, अमेरिका जरूर झंडे गाड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिकन 34 करोड़ लोगों की बात करें, तो वो जो नीचे के 1 करोड़ लोग हैं, मैं उनके रेफरेंस से बोल रहा हूँ, जो गांधी जिसको अंत्योदय कहते थे, नीचे का 1 करोड़ जो है वो जरूर रिग्रेट करेगा कि ये कैसा आदमी हमें रूल करके गया था। अजय, थैंक यू सो मच आनंद फॉर योर कमेंट्स एज यूजुअल। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।